आप देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। सो फोर्थ एक्सपांडेबल की शुरुआत हो चुकी है, धमाकेदार शुरुआत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे और कितनी एक्साइटमेंट है। 2 साल कोविड के हम लोग ने कुछ नहीं किया, अब फाइनली होने जा रहा है, थोड़ा सा बताइए। सबसे बड़ी बात तो पहले बोलना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच आप लोग के सपोर्ट के लिए। आप लोग के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। और एक्सपेंडेबल की शुरुआत हो चुकी है और सबसे ज़्यादा हम लोग इस समय नर्वस हैं, सच में नर्वस हैं, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि इस तरह के एक्सपेक्टेशन और इस तरह के। और हमारे मित्र दीपक साहू जी का थैंक यू बोलना चाहेंगे कि इन्होंने शुरुआत से, आपका सब थैंक यू बोलना चाहेंगे, राकेश झाला, स्नेह झाला, एवरीबडी फ्रॉम द टीम, पूजा नवाठे, सब जो टीम लगी, वसीम अख्तर, सैफ अली मोमिन, इन लोगों ने जिस तरह से, आप देख सकते हैं किस तरह का सेटअप लगाया, किस तरह की चीज़ें, ये आसान नहीं था। बीरेन भी आ गए हैं, वहाँ हमारी टीम से ही है। तो अब दीपक जी से चाहूँगा कुछ प्रकाश डालें इस पर। आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोग का दिन है, मीडिया का दिन है। हम लोग लोगों के लिए कवर करते हैं, कोई उस तरफ होता है तो कोई इस तरफ होता है, लेकिन आज हम दोनों एक तरफ हैं। तो ये रितेश को मैं थैंक यू करूँगा कि मतलब ऐसा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और साथ मिलके हम लोग ये आज यहाँ पहुँचे हैं। मतलब ऐसा कोई मामूली अवार्ड नहीं लग रहा है, लग रहा है कि यस समथिंग बिग इज़ हैपनिंग एंड अच्छे लोग भी आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं हम लोग को सपोर्ट करने के लिए। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मनोज वाजपेयी जी को, एली एवराम को, मीरा चोपड़ा को, जितने भी सेलिब्रिटीज़ और भी आ रहे हैं। हमारी एक टीम मेंबर ज्योतिका जी भी आ गई हैं, वो भी हमको बहुत सपोर्ट करती हैं। तो जितने भी मीडिया पर्सोनाज हैं उनको हम थैंक यू बोलना चाहेंगे। और जितने सेलिब्रिटीज़ हमारे, संदीप सर को, एवरीबडी जो भी आ रहे हैं वो हमारे लिए थैंकफुल, हम उनके लिए थैंकफुल हैं। It's a wonderful thing that the organizers have started, because I think every service should be recognized and rewarded, and I think without media, without the journalists, we are nothing as actors, or we need them, like they are the main link with the entertainment industry to the common man. So I think they are such an important part of our industry, and they need this kind of recognition. Expecting fun and expecting to see all of them, the excitement, the celebration. Professional fun. Well, I am doing a TV show called Sindoor Ki Qimat for Dangal TV, which is a 4 Lines production. I've been associated with 4 Lines for almost 4 years now. I've done like almost most of their back-to-back, all their shows. And I'm also currently doing a film, which is ASO4, if you're aware of, with Ayush Sharma and Jagpati Bapu. So I'm opposite Jagpati Bapu. So I'm very excited about the film because, film is film. Like I started with films earlier, but then there was a gap. I got, after my second baby, I kind of took a little pause, and then I was focusing more on TV. Basically, I was, not that I did purposely, but I was waiting for a good role. So I got a good role now, so I took up a film. Pleasure. And I recently entered this industry, and till now it has been an amazing time. And so I'm coming up with my new film called Music School, which is coming on this April, and I hope you all will like it. And yeah, that's it about me. What are the different hats that you're wearing? I was earlier a professional football player, so I was playing for different leagues, domestically, state, as well as nationals. Then now I slowly started stepping into this industry, and I'm just having fun with it. And let's see where it takes me now. First of all, it's amazing, this 4th Expendable Awards. It's just amazing that there's an institution which dedicates themselves to give awards to the dedicated media people, and just amazing to see all your hard work and all the best wishes. क्योंकि आज उनको उनके काम की जो सराहना जो मिलती है, उनके लिए उनको अवार्ड मिलेगा, और हमें तो मिल ही रहा है।
और बस यही कहूँगा कि जितने भी मीडिया वाले अच्छा भी काम करते हैं, अच्छाई भी दिखाते हैं, बुराई भी दिखाते हैं, तो ये आज वो काम का आप लोगों को अवार्ड मिलेगा जो आप लोगों ने पूरे साल में, मतलब ये तो चौथा है, फोर्थ है, आई थिंक फोर्थ है ना, फोर्थ एडिशन अवार्ड है। और तो यही कहूँगा कि बस जितने मीडिया वाले हैं सभी भाई, आप लोगों ने दिल से काम किया, तो आप लोगों को गुड लक और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। यस मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोगों की आवाज़ आप लोग ही पहुँचाते हो एंड आज आपके काम को सराहाया जा रहा है, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है। तो हमारे जितने कैमरा के पीछे पीछे लोग खड़े हैं उन सभी को मैं कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके ज़रिए ही हम लोगों तक पहुँच पाते हैं और आपके ज़रिए हम लोगों को बहुत सारी न्यूज़ मिलती है। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अरे सुपर एक्साइटेड यार, 2 साल 2.5 साल के बाद, ये 3 साल के बाद हो रहा है, तो सुपर एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज मैंने देखा है, इसकी शुरुआत देखी है मैंने, जब ये सब लोगों ने मिल के एक आइडिया सोचा था और उस आइडिया को इतना बड़ा बनाया। आई थिंक आज तो बहुत बड़ा बन गया, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। और क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज फॉर द मीडिया, सेलिब्रिटी, बॉलीवुड पूरा आके हमारे यहाँ पे एक ही चीज़ होता है कि हम सब दिन भर काम करते हैं, लेट नाइट तक काम करते हैं, ज़्यादा होता है बॉस कभी बोल देता है कि गुड वर्क, दैट्स इट। बट आज जिन लोगों को अवार्ड्स मिलेंगे, दे आर एक्चुअली गोइंग टू गो होम, अपने घर पे जाके बताएंगे कि दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। पूरे साल हमने इतना मेहनत किया, इतना काम किया, और उसके बाद दिस इज़ व्हाट इज़ गॉट। दिस इज़ द बिगेस्ट अवार्ड एनी मीडिया पीपल कैन गेट। And you are also nominated, if I'm not wrong. Well, excited, nervous. Fingers crossed for that. मिल जाए तो फिर शाहरुख खान हमेशा कहता है मैं जाता हूँ अवार्ड लेने ही, तो मैं भी जाता हूँ अवार्ड लेने। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आज जो सब एनर्जी यहाँ पे आज है वो बहुत हाई एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, सो दैट विल बी ऑल्सो इनफ। मैं अनिल सिंह चंदेल, आप सभी को पहले मैं दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साल भर आप लोग हमारे पर्सनल मीडिया और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सबको आप कवरेज देते हैं। आज आपका दिन है, आपके दिन में मुझे शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और उसके लिए आपको सभी दिल से मैं शुक्रिया बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी यहाँ से अवार्ड जीत के जाएँ। साल भर आप हमें जिताते हैं, आज आप जीत के जाएँ। और स्पेशली थैंक्स फॉर रितेश भाई और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, बॉलीवुड आ रहे हैं, टीवी के एक्टर्स आ रहे हैं, मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह का बहुत काम हम देख रहे हैं और मीडिया के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आप इसको कैसे नहीं? मीडिया के बिना मीडिया का सबसे बहुत अहम रोल है। मीडिया के बिना नथिंग बोल सकते हैं। जैसे हम सांस हमारे लिए लेना ज़रूरी है, हम सांस लिए बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, उसे बिना सेलिब्रिटी, बिना मीडिया के नहीं जिंदा रह सकते। तो मीडिया का बहुत अहम रोल है, मीडिया सांस है सेलिब्रिटी की। मेरा अभी 2 मंथ पहले ही प्रोजेक्ट फिनिश हुआ है और नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट मंथ से हम एक नई फीचर फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके शेड्यूलिंग हो चुकी है और मैं उसके शूट पे फरवरी 1 वीक से जा रहा हूँ। कुछ 4 साल से हम लगातार देख रहे हैं और कमाल का काम है एक्सपेंडेबल का। ये 4th एडिशन है। हम बहुत बहुत मुबारक देना चाहते हैं एक्सपेंडेबल को, रितेश को, वसीम भाई को, सबको। Yeah, and we are very excited because it's a result of the 1 year's work, which we will see today on the stage. And I wish it will grow, it will become bigger, and it will never stop developing and growing. That's why we're here, and we will be, inshallah, supporting every year. मैं भी यही कहना चाहूँगी that first of all I just want to congratulate them for their efforts, और even I also want to wish them best in the future, and I want to आगे grow ही करें इससे ज़्यादा। Thank you. First of all, thank you so much for inviting me here, and I'm very happy, though I have heard about this award many times. This is first time, and thanks to Jyotika who invited me for this function. So really I'm very excited. I would love to see
and I would love to see who are getting awards. So, what do you want to say about the media who are working day and night for news? yes, of course. See, news is very important, and of course, from the sense, I think for last many centuries, the way the news have been like, these reporters have played their role, and the journalists have played their role, and like filmmakers like me, who are really very much get inspired. We get stories also sometimes because क्योंकि आप लोगों से जो कहानियाँ आती है उससे हम लोग फिल्में बनाते हैं. इनफैक्ट जो अभी भी मेरी जो लेटेस्ट फिल्म है मैंने छत्तीसगढ़ में शूट किया है, शबरी का मोहन, वो भी मैंने एक मीडिया रिपोर्ट से ही मैंने उसको उठाया था. तो आप दिन रात तो काम करते ही ऑफ कोर्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड. थैंक यू वेरी मच. रितेश और उनकी टीम हर साल जिस तरीके से एक्सपेंडेबल अवार्ड्स करवाती है, मीडिया के लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और लगातार उनकी जो टीम है इतने बढ़िया तरीके से काम कर रही है, एक से बढ़कर एक फिल्म को हैंडल कर रही है, आर्टिस्ट लोगों को इतना अच्छे से हैंडल कर रही है. लेकिन सबसे कमाल की बात है जिस तरीके से जर्नलिस्ट लोगों से, मीडिया के लोगों से उन्होंने रिलेशन बना के रखा है, और ख़ास तरीके से जब ये अवार्ड करवा रहे हैं उसको मीडिया के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं. मेरे ख्याल से इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि PR की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन रितेश की जो टीम है एक्सपेंडेबल, एक्सपेंशन, वो जो काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से और कोई कर ही नहीं सकता. जबकि इतने लीन टीम है उनकी, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो बड़ा दिल वाला ही कोई कर सकता है. अवार्ड की बात करें तो हमेशा अवार्ड स्टार्स को ही मिलते हैं, मतलब आइए मीडिया को जो दिया जाता है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मीडिया को जो इन स्टार्स को बड़ा स्टार बनाता है वो मीडिया के लोग हैं, और मीडिया के बारे में, मीडिया जर्नलिस्ट लोगों के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में अगर कोई सोचता है तो उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता. और ये अवार्ड मीडिया के लिए है, जर्नलिस्ट लोगों के लिए है, उनके काम को प्रोत्साहन देने के लिए है. मेरे ख्याल से इससे बड़ी चीज़ कुछ हो नहीं सकती. ये प्लेटफॉर्म जो है अपने आप में इसका अभिनंदन करना चाहिए, और इसका जितना इस जगह से आशीर्वाद मिल सके उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. आई थैंक यू रितेश एंड टीम. देखिए मैं रितेश, उनकी टीम से फिल्म जब भी उनकी कुछ आती है, इंटरव्यूज़ होते हैं, तो आपको मालूम ही है कि हम लोग किस तरीके से सपोर्ट करते हैं. और मेरा तो काम ही है, मेरे शो का नाम ही अनफिल्टर्ड बातें, तो मैं रिलेशन भी अनफिल्टर रखता हूँ अपने दोस्तों के साथ. रितेश भी उनमें से एक हैं, उनकी टीम के लोगों के साथ, और जो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है, और उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता. लगातार मैं बोलूँगा वो मीडिया के बारे में सोच रहे हैं, जर्नलिस्ट लोग के बारे में सोच रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा करता है. तो कुडोज टू रितेश एंड टीम. थैंक यू. मीडिया फ्रेंडली माना जाता है, पेपराजीज के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है हमने देखा. क्या कहना चाहिए मीडिया अवार्ड शो हो रहा है जो 24 घंटे 7 दिन आप लोगों को कवर करता है भाई? बट अभी दिस हैज़ बिकम अ थिंग, बट मैंने कभी इस इंटेंशन से किया नहीं. आप पूछो इससे, मैं बाहर भी वैसे ही मिलता हूँ जैसे यहाँ मिलता हूँ, तो थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि ये मैं सच में मिलता हूँ, और फिर आई डोंट नो. मीडिया में जिस तरह का हार्डवर्क करते हैं इसके लिए क्या कहना चाहिए ब्रदर? इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ ना. मैंने एक वीडियो बाइट भी भेजा था कि आई थिंक दिस द ओनली अवार्ड दैट सेलिब्रेट्स यू गाइस. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमें तो आप सेलिब्रेट करते हो, आपकी वजह से हमारा आर्ट प्रमोट होता है, हमारा काम प्रमोट होता है, तो आपका काम प्रमोट करने के लिए ये बनाया है. इसके लिए टू सपोर्ट दैट आई हैव कम. What do you feel कि कितना इम्पोर्टेंट होता है इस तरह जो अवार्ड शो होते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है. जो पेपराजी या ऑन जो होते हैं इनका बड़ा नाम नहीं होता है, सीनियर्स होते हैं तो उनको थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ें करनी पड़ती है. बट यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है जो जर्नलिस्ट जो ऑन फील्ड एक्चुअली होता है, तो उनके बारे में व्हाट डू यू फील? I think it's fantastic. I really think it's fantastic because I've always felt, जब मैं शूटिंग पे भी जाता था पहले बाबा के साथ, तो जो कैमरे के सामने आता है और डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, इन सबको बहुत अटेंशन मिलता है. बट ADs, ACs, लाइटमैन, गैफर, इन सबको उतना अटेंशन नहीं मिलता. जस्ट दे आर वर्किंग इन द फील्ड लाइक जर्नलिस्ट आर वर्किंग इन द फील्ड. सो आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि उनके वो मशीनरी के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उनके बिना कोई भी इंस्टीट्यूशन सर्वाइव नहीं करेगा. सो आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि जो चीज़ें इंस्टीट्यूशन को हेल्प करी, सिर्फ
क्रीम नहीं ना, सिर्फ ये जो ऊपर ऊपर जो चीज़ें वो नहीं, जो बेस है, जो फंडा क्लियर करते हैं उनके लिए आपने इंस्टीट्यूशन खोला है। आई थिंक इट्स अमेजिंग, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक है। मैं यहाँ हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। दिस इज समथिंग दैट आई एम हैप्पी अबाउट टू बी हियर। आपकी क्या मेमोरीज है मीडिया वाले को लेकर जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया इन फ्रंट ऑफ कैमराज? सर मुझे याद है पहली बार मैं आया था, मुझे तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं शर्मा आया और बहुत सारा प्यार मिला अचानक, तो मुझे मन किया मैं भी प्यार दूँ। तो ऐसे एक रिलेशनशिप बन गई, एक दोस्ती बन गई और मुझे अच्छा लगता है। लाइक आई लाइक और मैं थोड़ा ऑकवर्ड हूँ, मैं थोड़ा वियर्ड सा हूँ, मेरे को मैं नहीं फेस कर पाता, मैं पोज नहीं कर पाता, मैं ये सब नहीं कर पाता। तो जब ऐसे लगता है कि भाई लोग ही है तो अच्छा लगता है थोड़ा। Also, Babil, finally, what's happening on the professional front? Thank you, Rahul. Sorry, bro. What's happening on the professional front? क्या चल रहा है? कला को I'm sure बहुत अच्छा response मिला है, but we are expecting a lot of other things also. Yeah, brother. I think it like I can't say मैं कह नहीं सकता क्या आ रहा है, बट क्राफ्ट पे मेहनत जारी है और अभी टाइम लगेगा सर। आई वांट टू मूव यू विथ माई परफॉर्मेंस, यू नो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी परफॉर्मेंस देखो, लंबी परफॉर्मेंस है, वो आपके साथ रहे, तो और ये मेरे लिए ज़रूरी है। तो उसकी मेहनत चल रही है। वो अब कब आएगा वो दौर, अब उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है। जैसे बाबा को 40 ईयर्स, यू नो, जब मकबूल आई तब वो ऑलरेडी 40 ईयर्स के हो गए थे। तो मेरे को अभी कुछ होप्स एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी चीज़ से। आपका प्यार मिलता है, मुझे प्यार वापस देने का मन करता है, पर मेहनत एक्टिंग और क्राफ्ट पे, और उससे जब मैं आपका दिल जीतूंगा ना, वो हम दोनों के बीच एक अलग रिलेशनशिप बनेगा तब। सर अपना बचपना छोड़ना पड़ता है, अपना जो, जैसे मेरे दोस्त अभी मेरे दोस्त पार्टी कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, होता है ना सब। मैं बहुत अकेला रहना पड़ता है, आपको अपने आप को अपने दोस्तों से दूर करना पड़ता है, लोगों से दूर करना पड़ता है, अपने अंदर झांकना पड़ता है, और वो इट्स अ पेनफुल प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी लोनली प्रोसेस। तो आई थिंक टू गो थ्रू दैट, अभी मैं तो उसके थ्रू ही जा लूँ, वो बड़ी बात होगी मेरे लिए सर। अवार्ड्स जब फर्स्ट एडिशन हुई थी तब मैं आई थी, अब इतना बड़ा बन गया है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। राकेश जी को मैं जानती हूँ, रितेश जी को जानती हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि एक्सपेंडेबल अवार्ड्स को इतना बड़ा बनाने के लिए। और आप लोगों ने, मीडिया वालों ने हमेशा आर्टिस्ट्स को सेलिब्रेट किया है, और आज शायद ये हमें मौका मिल रहा है कि हम आप लोगों को सेलिब्रेट करें। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच। मेरी अभी साउथ में 2 फिल्में आ रही है, मलयालम में, फिर हिंदी में फिल्म आ रही है पवाई। इससे पहले मैंने पैडमैन, माझी द माउंटेन मैन, अकीरा, बियॉन्ड द क्लाउड्स, डायल 100, इन सब भी फिल्मों में काम मैंने किया है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी फिल्म बैलाड ऑफ रुस्तम, जो ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई थी इंडिया के लिए 2014 में, और उसके बाद काफ़ी काम कर रही हूँ, और आप लोगों का साथ चाहिए और सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। फोर्थ एडिशन ऑफ एक्सपेंडेबल अवार्ड्स, मतलब फर्स्ट एडिशन से आप साथ में, और रितेश के और पूरी टीम के, क्या कहना चाहेंगे? यार मज़ा आ रही है देख के, जिस तरीके से काम चल रहा है, जिस तरीके से तुम लोगों ने ये एग्जीक्यूट किया है। हर साल एक्चुअली ग्रोथ देखी है मैंने, क्योंकि पहले एडिशन से मैं देखते आ रहा हूँ। पहले एडिशन में कुछ, दूसरे एडिशन में कुछ, तीसरे एडिशन में, और चौथे एडिशन में तो तुमने बिल्कुल लाजवाब बना दिया यार, पूरा रेड कारपेट वगैरह। मज़ा आ गया देख के, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई एम श्योर आई एम गोना हैव फन। तो यार मीडिया के रोल को मेरे से अच्छा कौन बता सकता है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमारी पूरी कंपनी चल रही है। आई वुड से आप लोगों के कंटेंट की वजह से ही हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। सो तहे दिल से शुक्रिया एक एक मीडिया पर्सन को, एक एक पेपराजी को, एवरी वन ऑफ यू जितने भी है, सबको मेरी तरफ से पर्सनल शुक्रिया, बिकॉज आप लोगों की वजह से ही हम एग्जिस्ट करते हैं और चल रहे हैं। शुक्रिया गाइस।
मैम क्या कहना चाहिए आज एक्सपेंडेबल का अवार्ड क्या कहना चाहिए इसमें? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस अवार्ड फंक्शन में आ पाई हूँ और कि ये अवार्ड फंक्शन है। पिछली बार 2019 में भी आई थी। कैमरा के सामने काम करना मुश्किल काम होता है, लेकिन कैमरा के पीछे जो लोग काम करते हैं वो और भी मुश्किल होता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि उन सब के लिए ये अवार्ड्स है, उनको इनकरेज करने के लिए, उनको उनके काम को पहचानने के लिए। कितना अहम है मीडिया का हुनर, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? हम लोग जो काम करते हैं वो हर स्टेज पे कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। जब हम शूटिंग कर रहे होते हैं तो पूरी टीम के बिना आप शूटिंग नहीं कर सकते। वैसे ही जब आप प्रमोशंस कर रहे होते हैं, अपने काम तक को ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो मीडिया का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और मीडिया ने हर समय हमको सपोर्ट किया है, तो ये हमारे लिए एक मौका है उनको थैंक यू बोलने के लिए। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में? हाँ जी, आपके अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट के बारे में? 2 नए शोज़ हैं। एक सुपरनैचुरल थ्रिलर सीरीज़ है, एक स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज़ है। मिर्ज़ापुर 3 इस साल कभी रिलीज़ होगी, और 2 नए फिल्म्स भी हैं। तो काफ़ी कुछ काम इस साल देखने को मिलेगा। अभी तक ऑफिशियल कोई खबर नहीं है, लेकिन क्योंकि सीज़न 1 और सीज़न 2 को ऑडियंस ने इतनी व्यूअरशिप दी, तो ज़रूर आई ऑल्सो होप कि सीज़न 3 हो, क्योंकि इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज़। थैंक यू सर। क्या कहना चाहिए? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड हूँ। बीते दिनों में मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन एक होता है ना कि आपको दुनिया भर में कितनी भी शोहरत मिले, कितना भी सम्मान मिले, लेकिन आपको अच्छा तब लगता है जब आपको अपने घर में सराहना मिलती है। तो जो एक्सपेंडेबल है, ये मेरे घर का अवार्ड है, मेरे मीडिया वालों का अवार्ड है, हमारा अपना अवार्ड है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर मुझे बुलाया गया है, सम्मान दिया जा रहा है, और यहाँ पे मेरी फ्रेटर्निटी है, आप लोग सब मेरे लोग हैं। तो मैं यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा बहुत खुश हूँ मैं। एंड थैंक यू, मैं एक्सपेंडेबल और उसकी पूरी टीम को बहुत ही शुक्रिया कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। हाँ, मतलब ये बहुत ही ये ऐसी बात है कि हम और आप, मैं और आप, हमेशा जब भी बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन होते हैं तो हम उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। इतना स्ट्रेस होता है कि कब कौन सी सेलिब्रिटी रेड कारपेट पे आई है, कब क्या बाइट लेना है। और आज बोलते हैं ना, पाला बदल गया है। वो कहते हैं ना, कभी नाव नदी पे तो कभी नदी नाव पे। तो आज हमारा पाला बदला हुआ है। तो एक बहुत ज़्यादा अद्भुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके लिए मैं मतलब बहुत ही रितेश जी को, उनकी पूरी टीम को, एक्सपेंडेबल की पूरी टीम को बहुत ही शुक्रिया कहना चाहूँगी। थैंक यू। बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज जो भी है मीडिया को फाइनली उनकी मेहनत का आंसर मिला, मेहनत का फल बोलते हैं वो। तो मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए, क्योंकि हम जो भी हैं आज मीडिया की वजह से ही हैं। तो एक्साइटेड टू बी हियर एंड आई विश जो भी डिज़र्विंग हो उनको ये अवार्ड मिले। जब मीडिया की बात होती है, सेलिब्रिटीज़ की बात होती है, तो बहुत कम एक्चुअली सेलिब्रिटीज़ आते हैं सपोर्ट करने के लिए। एवरीवन इज देयर विद द मीडिया, बट फॉर द मीडिया देयर आर वेरी फ्यू पीपल एंड यू आर वन ऑफ देम। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस इमोशनल कनेक्ट किसी तरीके का, या यू ऑलवेज सपोर्ट द मीडिया? फॉर मी, मेरे लिए मैं बहुत नॉर्मल थी। तो जो भी मैं बनी हूँ आज, चाहे वो मिस इंडिया हो, बिग बॉस हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मीडिया। उनका सपोर्ट हमेशा से ही रहा है। मैंने हमेशा देखा है उनको मेरे होम कमिंग में, मेरे लास्ट इविक्शन के टाइम में भी। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। तो मेरा सपोर्ट तो उनके लिए हमेशा रहेगा। एंड देयर इज़ अ इमोशनल कनेक्ट ऑलवेज। आई ऑलवेज से कि मान्या जो भी है अपने फैंस और मीडिया की वजह से ही है। So many things are happening and lined up, but I can't reveal now. But I will definitely say that wait and watch. Everything will be on floor. Thank you so much. Thank you. All you good guys. Thank you for calling us here. Love you so much. Thank you so much guys for calling here. I'm very very happy. Thank you so much for supporting me. Really, I'm very very happy. Love you all guys. Really. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लव यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।
God bless you all. आज एक्सपेंडेबल अवार्ड है, क्या कहना चाहिए इसके लिए? I'm very very happy. I'm first time see. I'm like I'm so very good. We are I'm very happy. Very happy. I'm so much We are happy. getting Thank some you award. so much. Thank you so much. I'm very very happy. Love you so much, guys. Thank you so much. This is. Love you. We not doing anything. All you doing. All you supporting us. We become big. Very Thank you so much, guys. Love you so much. There were few celebrities, you know, who actually support the media. मीडिया के साथ तो सब काम करते हैं, लेकिन सपोर्ट करने में बहुत कम लोग आते हैं. And you guys are over here. Thank you. And how does it feel? We are always supporting everybody. I'm very very happy. Everybody we are so much supporting. happy. Thank you so much. Really. अवार्ड है एक्सपेंडेबल का, तो इससे पहले सर क्या कहना चाहिए? मैं तो सबसे पहले एक्सपेंडेबल्स की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और ये चौथा एडिशन है और बहुत ही सक्सेसफुल पिछले 3 एडिशंस रहे हैं, और मीडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन, और सारे जर्नलिस्ट जो डिज़र्विंग होंगे उनको अवार्ड्स दिया जाएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ, और आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम हियर एंड टू सेलिब्रेट विद देम, क्योंकि हमेशा हमारे सेलिब्रेशन में वो शामिल होते हैं, आज उनके सेलिब्रेशन में हम शामिल हो रहे हैं। सर कितने कोलैबोरेट रहता है, कितना इम्पोर्टेंस होता है मीडिया का, कैमरा मैन का, जो एक स्टार्स के लिए जो हमेशा उनके लिए भागते हैं? नहीं, एब्सोल्युटली हम मतलब एक्टर्स के लिए, फिल्मों के लिए, सभी के लिए मीडिया का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी बात जनता तक पहुंचाने का ज़रिया जो है वो मीडिया है, तो अगर वो रहेंगे तो हमारी बात जनता तक पहुंचेगी। तो यस, पापाराज़ी भी काफ़ी सारा होता है कि हर जगह की खबर पहुँचाते मीडिया वाले। हाँ, जब पापाराज़ी तो क्या करेगा काजी। जी इतनी खुशी हो रही है उनके लिए, और ऑब्वियसली जर्नलिस्ट और मीडिया के लिए वो जो करते हैं, ऐसा कोई अवार्ड, एक्सपेंडेबल्स अवार्ड जैसा कोई नहीं है, फॉर द मीडिया, बाय द मीडिया, ऑफ द मीडिया। सो इट्स फैंटास्टिक, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले 50-60 साल तक ऐसा ही हो, ये फिल्म फेयर जितना बड़ा हो। थैंक यू वेरी मच। This is the only award show which felicitates media persons. क्या कहना चाहेंगे आप लोग, कितने एक्साइटेड है आज की नाइट के लिए? You want to go first? Well, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरी हिसाब से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अवार्ड नाइट है, क्योंकि आप सब लोग इतने इम्पोर्टेंट है, एंड सीरियसली मतलब आप लोगों के बिना तो हमारा क्या होगा, यू नो। सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट that we all come here and support this because yeah, you all are very special and मैं भी पहली फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है, इट्स ब्यूटीफुल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, ये अवार्ड मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच टू एक्सपेंडेबल्स फॉर इनिशिएटिंग दिस अवार्ड, बिकॉज हम लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए। मैं हम लोग इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं खुद एक जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, तो मैं जानती हूँ स्टैंडिंग देयर एंड टेकिंग पिक्चर्स एंड टेकिंग इंटरव्यूज़ कितना एक्साइटिंग होता है, और जब हमारे काम को सराहा जाता है, इट रियली फील्स वेरी नाइस। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड। ऑल द बेस्ट। कल्चर चल रहा है, आप लोगों ने पहली बार मीडिया को फेस किया था, अगर ऐसी कोई मेमोरी शेयर करना चाहें? हम दोनों women in black है, by the way. We are ready for an action rom-com. Oh yeah, totally. Oh well, yeah, I'm excited to complete the shoot of Ganpat and then the release for it. Yeah. I'm also looking forward to her Ganpat because Ellie is there, my tiger is there. So yeah, it will be very interesting. फिर हमारी I'm very excited for Bawal, which is a very beautiful film. वरुण एंड नितेश जी के साथ हमारी सेकेंड ये है। देन सत्य प्रेम की कथा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो येस, नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग फॉर बॉलीवुड, या फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। या थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। या मीडिया अवार्ड शो में क्या कहना चाहेंगे, मीडिया को अप्रिशिएट किया जा रहा है यहाँ पर, बहुत एक्सपेंडेबल। मेरे को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा आप सबको। मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को बड़ा बनाने में, किसी स्टार को स्टार बनाने में सबसे ज़्यादा जो सहयोग होता है वो मीडिया का होता है। तो उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। थैंक यू सो मच गाइज, एंड माई फिल्म इज़ रिलीजिंग ऑन 26 January. प्लीज़ गो इन थिएटर्स एंड वॉच इट। नेम ऑफ द फिल्म इज़ गांधी गोडसे।
एनी मैसेज फॉर ऑडियंस? ऑडियंस से यही है कि बस अपना प्यार बनाए रखें, आप हो तो हम हैं। थैंक यू, थैंक यू। अवार्ड हो रहा है, ओनली अवार्ड शो मीडिया को अप्रिशिएट किया जाता है, क्या कहना चाहिए? और बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी शेयर करते हैं आप मीडिया के साथ। हाँ, मतलब मुझे बहुत फैसिनेशन है कि आप लोग जिस तरह से हमें लोगों के साथ कनेक्ट करवाते हैं। आप लोग कॉन्स्टेंटली रहते हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते कि अच्छा चलो यहाँ पर कोई होगा कहीं रेस्टोरेंट, वहाँ भी मतलब आजकल मीडिया मौजूद रहती है। एंड कोई भी न्यूज़, कुछ भी खबर बिना मीडिया के तो शायद हम जान ही नहीं पाए। वो कहते हैं ना, द वर्ल्ड इज़ श्रिंकिंग एंड वी नो एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। सो मीडिया इज़ सो इम्पॉर्टेंट वो हम तक दुनिया को पहुंचाने के लिए। एंड ये इट्स हाई टाइम, कंग्रेचुलेशंस टू दिस इनिशिएटिव एक्सपैंडेबल अवार्ड्स। इट्स हाई टाइम एंड इट्स सो वेल डिजर्व्ड। पीपल, it's high time that journalists need to be honored and media needs to be acknowledged in a big time. मैम, पैपराज़ी कल्चर चल रहा है, ऐसा कब पहली बार हुआ? ऐसी कोई मेमोरी है शेयर करना चाहेंगे जो फैक्स ने आपको जो है स्पॉटेड किया हो, या फिर ऐसा कुछ, अगर कुछ मेमोरी शेयर करना चाहे उस मोमेंट? मेमोरी नहीं, जितनी भी मेमोरीज है सभी अच्छी है और अभी आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आता है। अगर शायद अगर मौका मिलता तो मैं एटलीस्ट एक दिन के लिए मैं जर्नलिस्ट बनना चाहूँगी। एंड मुझे जेन्युइनली जानना है कि जिस तरह से आप लोग फटफट क्वेश्चंस पूछते हैं, जिस तरह से आप लोग ऑन द स्पॉट सोचते हैं, जिस तरह से आप फॉलो करके किसी भी सेलेब को यू काइंड ऑफ यू फाइंड आउट थिंग्स अबाउट देम, तो मुझे वो बहुत इंटरेस्ट है। आई थिंक हर किसी को जिसको दूसरों के बारे में जानने का इंटरेस्ट है, उसे कहीं ना कहीं जर्नलिज्म में इंटरेस्ट होता ही है। बट पापराज़ी के साथ, हाँ, मैं उस दिन बड़े सारे पिंपल्स आए हुए थे। रोज़ मेकअप लगाती हूँ तो कई सारे पिंपल आए हुए थे, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास गई हुई थी और मैं वो फेस का जो क्लीन अप होता है ना, वो करके निकली थी। तो देयर वाज ऑल दीज मार्क्स पिंपल के। एंड सडनली आई सी द पैप्स दे मनोज और ये सारे वहाँ पर थे। एंड आई सेड, मनोज एक मिनट रुक जा, मेरे को ये सारे ऐसे दाग हैं, तेरे को ये दिखाना है। एंड ही सेड, अच्छा मैम, अच्छा। सो इट वाज सो स्वीट, सो वो एक इंस्टेंट में वो दैट बॉन्डिंग, दैट अंडरस्टैंडिंग also, it was totally touched my heart. So yeah, that is one thing I remember. Also, अनुपमा काफ़ी अच्छा कर रहा है। तू बोलो जब भी ये बोलो। ओके, लेकिन फैमिलीज़ का किस तरह का रिस्पॉन्स है जब अनुपमा और जो शोज़ इतना अच्छा कर रहा है, लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, मतलब हर घर में देखा जाता है? बस प्यार ऐसे ही मिलता रहे, सारी मम्मियाँ ऐसी ही देखती रहे। मतलब मैं कई बार सोशल मीडिया पे पढ़ती हूँ कि ये ठीक नहीं है, अनुपमा ये वो, ऐसा कुछ कभी नहीं। लेकिन कभी भी किसी जो हमारी एक्चुअल शायद ऑडियंस है, वो है सारी मम्मियाँ जो आपके सोशल मीडिया पे नहीं है। क्योंकि जब मैं कहीं स्मॉल टाउन या कहीं जगह पर जाती हूँ, वहाँ पर मुझे घर की जो गृहिणियाँ हैं वो सारी मिलने आती हैं, और जो प्यार वो मुझे देती हैं वो कभी भी मुझे शायद सोचा भी नहीं था सपने में कि वैसा प्यार मिलेगा। तो या थैंक यू राजन शाही, जिनके वजह से मैं अनुपमा हूँ। थैंक यू स्टार प्लस, जो मुझे अनुपमा बना के हर घर तक पहुँचाते हैं। और थैंक यू सारी पूरी टीम को यार, थैंक यू। मैं क्या, मैं तो फेस हूँ। लास्टली हमेशा में हम लोग बोलते हैं कि ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए, इस बार मीडिया के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मीडिया के लिए यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू कि आप लोग हमारी ज़िंदगी में हैं। थैंक यू। कई बारी मैं देखती हूँ कि कुछ सेलेब्स, आजकल तो सभी अच्छे हैं, मीडिया के साथ सभी अच्छे हैं, लेकिन कुछ सेलेब्स जैसे आते हैं एंड सडनली दे जस्ट वॉक इन एंड दिल बी लाइक आई डोंट लाइक दैट। सो क्यों, मतलब यू माइट एज वेल, media needs to be given a lot of respect and they deserve it. And seriously, hats off to all of you, to every journalist, hats off. I am so proud of the work you are doing and I'm sure आप लोग नहीं होते तो हम तक आधी चीज़ें पहुँचती नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। Thank you all of you and well deserved. God bless. थैंक यू प्रणालिका मैम। सबसे पहले 4th एक्सपैंडेबल अवार्ड, मीडिया अवार्ड, मीडिया लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का बॉन्डिंग आपका। Congratulations, and मेरा फर्स्ट इवेंट है यहाँ पे जो मैं अटेंड कर रही हूँ एक्चुअली। Thanks for calling us and it's been so good and I have a friend
of mine. She's from Melbourne also. So she's like, wow, this is something, you know, we don't have in Melbourne. And yeah, it's a good experience and congratulations to the entire team. सबको बहुत बहुत मुबारक हो and fourth is like a big thing. What is next? आपके बहुत सारे pageants हो रहे हैं और Pageants नहीं है, fashion events है यार. इस बार जो इंडिया में करने का plan है. Yeah, इस बार इंडिया में है. We are actually about to launch Australia Fashion Week India. So we are working on that and you know it very well. You're always been a part of our family and a team member. So yeah, I mean like you'll get all these updates soon. So we will be announcing it soon. How was your experience coming? Oh my God, I was so starstruck how well you guys have done. We don't see this in Melbourne, I can tell you that. She gets it sometimes in Melbourne, but not like that. Very, very nicely done. No, nothing comparing to this. Like, yeah. Also, विश्वजीत सर के बहुत सारे अगर कुछ शेयर करना चाहें. विश्वजीत सर आज भी आर्या 3 के लिए शूट कर रहे हैं मड में. सो आई वॉज वेटिंग फॉर हिम. देन आई थॉट नहीं मैं चलती हूँ, अदरवाइज अगर मैं विश्वजीत का वेट करूँगी तो आई एम गोना मिस इवेंट. सो या ही इज़ बिजी बट विश्वजीत बहुत सिलेक्टिव भी हो गए हैं, बहुत कम काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मीडिया को आज अवार्ड दिया जा रहा है, मीडिया को अप्रिशिएट किया जा रहा है. 4th एक्सपेंडेबल अवार्ड हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? कितना प्राउड फील हो रहा है मीडिया? दिस इज़ मतलब बहुत ही कमाल की इवनिंग है और कमाल का अवार्ड है. जो मीडिया के लोग पूरे साल पूरी इंडस्ट्री को कवर करते हैं और सारे के सारे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इंडस्ट्री में उसको दिन रात कवर करते हैं बिना अपने बारे में सोचे हुए, अपनी परेशानी को सोचे हुए. वो दिन रात अपने काम पे लगे रहते हैं. सारे एक्टर्स सही जगह से सही तरीके से उनको कवर किया जाए, उनके बारे में लिखा जाए, उनको वो इज़्ज़त दी जाए, इसका ख्याल रखते हैं. लेकिन कभी उनके लिए कोई सम्मान नहीं था और ये मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा ऑर्गेनाइजर्स का कि जो इन्होंने इस तरह के कमाल और बहुत ही अनोखे अवार्ड के बारे में सोचा जहाँ पत्रकारों को सम्मान दिया जा रहा है. सर इसके अलावा जो पेपराजी कल्चर चल रहा है, ऐसी कोई मेमोरी है जब आपको मीडिया ने पैप किया हो और वो सही टाइम ना हो? नहीं, मुझे मीडिया से कोई परेशानी नहीं रही, कभी भी नहीं. और शायद इसीलिए आज इन्होंने मीडिया फ्रेंडली का भी अवार्ड दिया मुझे. मीडिया से मुझे कभी परेशानी रही नहीं है, इतने साल हो गए मैं बल्कि ये कहना चाहूँगा अगर इंडस्ट्री में 5 मेरे अच्छे मित्र हैं उसमें से 2 या 3 पत्रकार हैं. तो आप सोच सकते हैं कि पत्रकार समुदाय से और इस पूरे समूह से मेरा कितना अच्छा नाता रहा है, कितने करीब से मैं इनको जानता हूँ. सर हर बार हम कहते हैं कि ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, लेकिन इस बार मैं कहूँगा कि मीडिया के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सालों से. आपके पहले भी बहुत सारे लोग थे जिनको हमने देखा है और आज भी आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अभी जो कैमरे से आप लोग जो लोग मेरी तस्वीर ले रहे हैं वो पीछे खड़े हैं और मेरे बाद पता नहीं और कितने आएंगे, सबकी बातों को रिकॉर्ड करेंगे. मेरे पहले कितने लोग आए होंगे, उनकी बातों को रिकॉर्ड किया होगा. तो लगातार जो आप लोगों का एक जगह पे खड़े होकर लगातार सारी की सारी एक्टिविटी को फॉलो करना, सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स को फॉलो करना, ये कोई आसान काम नहीं है. और इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे ऊपर इतनी नज़र रखते हैं. हमारे और दर्शकों के बीच में आप एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट कड़ी हैं, उसके लिए धन्यवाद. सर आखिर में फैमिली मैन 3 का लोग ईगरली वेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? फैमिली मैन 3 के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इसकी बहुत कमाल की जानकारी अमेज़ॉन दे सकता है या फिर राजन डीके दे सकते हैं. जिस दिन हमसे डेट्स मांगा जाएगा या उस बारे में कोई बात होगी तो आप तक ज़रूर पहुँच जाएगी. थैंक यू सर. 4th एक्सपेंडेबल अवार्ड मीडिया को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनको फेलिसिटेट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? एज अ एक्टर किस तरह का रिश्ता रहा है टू पैप्स एंड मैंने देखा बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है आप लोगों की. आई थिंक मैंने हमेशा फ्रेंड्स की तरह लिया है, नॉट लाइक जर्नलिस्ट, बिकॉज
वहाँ वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो वॉल एक जो होती है वो तोड़नी बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक आई लव द अवार्ड्स। मैं पहली बार ये अवार्ड्स में आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई थिंक ये चौथा है, पर मुझे नहीं पता था, मुझे लगा आज फर्स्ट है, बट दिल से बहुत अच्छा लगा कि सबको उनका ड्यू मिला। और किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करती है आप, और ऐसी कोई मेमोरी है जब आपने पहली बार मीडिया को फेस किया हो, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें? नहीं, बट मुझे बस बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग इतना प्यार देते हैं, मेरी बेटी को इतना प्यार करते हैं सब लोग, और मुझे तो कभी नहीं लगता है कि मेरी बेटी कभी मीडिया के सामने नहीं आए। और मैं तो माई डॉटर लव्स मीडिया, माई डॉटर लव्स पैप्स, शी लव्स गेटिंग क्लिक्ड जस्ट लाइक हर मदर। मैंने म्यूज़िक वीडियो किया रेमो के साथ, बस मैं वेट कर रही हूँ रिलीज़ होने का। और मैं अपनी बेटी के साथ घर से सोशल मीडिया पे आप सब ने देखा होगा मैं काफ़ी ब्रांड्स करती हूँ, तो अभी घर से बाहर निकलने के लिए आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे मीडिया को? आप भी खुद मीडिया से हैं और अब प्रोड्यूसर बन गए, लेकिन मीडिया को एज अप्रिशिएट किया जा रहा है, एज अ मीडिया पर्सन कैसा लगता है? देखिए, ये तो एक खिताब होता है कि हम प्रोड्यूसर होते हैं या राइटर होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, पर हम सब बनते ही एक ही वजह से, हमारा सपना जो पहला स्टेप पूरा होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया की वजह से होता है। और मैं किसी भी अवार्ड फंक्शन में जाता ही नहीं हूँ, पर जब मुझे बोला गया कि मुझे मीडिया वालों के लिए आना है और उनको इज़्ज़त ये देनी है, तो मैंने सोचा नहीं, मैं सीधा आ गया, क्योंकि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे सफ़र में हमारा साथ देते हैं, और यही एक लोग होते हैं जो हमारी फिल्मों को, हमारे काम को, हमारे नेचर को, हमारे बात को, हमारे बदतमीज़ी को भी और हमारे तमीज़ को भी, दोनों को जनता तक पहुंचाते हैं। तो आई थिंक इनसे बढ़ के कोई और नहीं होता हमारे लिए। आज मीडिया नहीं हो तो शायद फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं हो, या कोई भी चीज़ों में उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो। आज अगर भीड़ हमें हर शहरों में घेरती है, आती है, इज़्ज़त देती है, क्योंकि मीडिया ने हमें उन तक पहुंचाया है। तो आई थिंक मीडिया से बढ़ के कुछ नहीं, और मीडिया से प्यारा कुछ नहीं, और डर भी लगता है और प्यार भी आता है। नहीं, आज मेरे हिसाब से तो आज आप लोगों का दिन है, तो किसी फिल्म का और अपने बारे में बात करना बहुत ही छोटी बात है, क्योंकि हमारा एक जो फिल्म होता है उसके लिए हम फंक्शन रखते हैं, बातें करते हैं। और मेरे हिसाब से आज आज आपका दिन है। आई थिंक आई लव यू ऑल, एंड ये अवार्ड जो है वो कोशिश करके मैं सारे प्रोड्यूसर्स को एक साथ लाऊंगा, और इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 साल में ये अवार्ड इतना बड़ा किया जाए कि हम सब इंडस्ट्री वाले मिलके मीडिया को अवार्ड दें, ना कि मीडिया अपने लिए ही ऑर्गेनाइज़ करे। और फिल्म इंडस्ट्री में जितने फिल्मकार हैं और एक्टर एक्ट्रेसेस, और हमारी फिल्मों को भी अप्रिशिएट मीडिया ही करती है, अवार्ड भी मीडिया देती है, क्रिटिसाइज़ भी मीडिया करती है। तो इस बार मुझे लगता है वक्त आ गया कि फिल्म इंडस्ट्री एक नई सोच लाए, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री मिलकर एक अवार्ड तैयार करे जो एक्सपेंडेबल है। और रितेश ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया ये 4th ईयर है। इनफैक्ट इंडस्ट्री में रहने के बावजूद मुझे पहली बार ये बात पता चला। मैं कोशिश करूँगा कि ये इज़्ज़त मुझे हर बार यहाँ आने का मौका मिले, और मुझे अवार्ड पाने का नहीं पर देने का बहुत शौक है। थैंक यू सो मच।